I'm Abhilash Rajput from Rose Public School, Suryali. Uh, हमने economics portion में we had finished the chapter 1, that is of development. In the development section, what we had studied that what is development and how aspirations and desires are basically leads the objective that is resembles to an individual and also to society and also to nation and also at an international level. ठीक है, so the objective of development is basically being connected with these things. ठीक है, and the conflicts of ideologies that has basically become a source of development. ठीक है, so we have to choose one particular mode of process that leads towards the development, and for that purposes the governments, that is why that's what the government, the task has been assigned to the government, okay, to formulate the policies and laws as in a way that it basically facilitate the citizens of the country, okay, in such a way that they could also able to fulfill their objectives. They uplift their living standards. They also made an improvement in their livelihood activity, in their economic activities. So the maximum opportunities would be created in a country. Okay. So the developmental process of the country could also be get assured. So where the concern when we are talking about the term development, we had read in the chapter that development has not only limitized only by the improvement that we incurred through economic activities and through by just deriving an income source. Okay, it cannot only be determined, the development could not be determined on that basis. Besides that, development has also required a proper facilities. A public facilities has also assured. It makes an environment that basically facilitate the developmental processes, developmental goals to be get achieved by the country. Okay. And in the chapter 2, we also had studied that for the comparison of the development of one state to of one state with another state, or of one nation with another nations, we are adopting a method of averages. Okay. Through that we are divide the total income by the total population of the country or the state. So this method has also facilitated the international agencies like World Bank, International Monetary Fund to determine or to grant a loan facility for the underdeveloping nations. They could able to assess the big points of the nations where the work has to be done, where the support is to be required. A financial support can be given to them, and they are also the averages method has also helped them to determine that at what extent the loan facilities could be granted to them and in what way. Okay. And they also had to get assured that the loan can also be returned in proper time by that particular country. So this is the basic method that has facilitated the whole process, and this process has been amended. This process has been meant out just only to make the developmental processes to be done in an international level, in a national level, and also in a local levels. So by that we had finished the chapter. I have a request, not request, ठीक है, आई नीड नॉट टू मेक एनी रिक्वेस्ट विद यू पीपल, क्योंकि आपको भी ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस वक्त आप क्लास 10 स्टैंडर्ड में हैं, एक और सिचुएशंस में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी है कि ये जो लेट्स वर्क दिस आउट एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस को देखिए। ये सब क्वेश्चंस आपने 1 मार्क्स के हिसाब से करने हैं, इनको आपने 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको सिर्फ आपने स्टडी करना है और इनको 1 मार्क्स के हिसाब से करिए, इनको पढ़िए। ठीक
ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ेगा, आप डिफरेंट सिचुएशंस को जो है समझने की कितनी क्षमता रखते हैं आपको ये पता चलेगा। इन केस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे को मैसेज करके वो डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ जो हैं इन सबको करिए, ये पूरा प्रॉपरली पढ़िए। एवरेज इनकम जहाँ पे बहुत एग्जाम्पलीफाइड वो में बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है। लेट वर्क दिस आउट, ये सब 1 मार्क्स के हिसाब से करनी है एक्सरसाइजेज आपने, ठीक है। देन सिमिलरली ये देखिए एक्टिविटी 2 है, इसको पढ़िए, ये ब्लैंक्स हैं इन्हें फिल करिए। उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसकी रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि HDI जो है उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो ये डिटरमाइन करता है एक्चुअली। ये इट इज़ बेसिकली टू गेट द फीडबैक that is related to the public facilities that has been provided either in the states or in the country, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट बताते हैं। इसमें हम लोग डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशो हो गई, आपका सेक्स रेशो हो गया, ठीक है, आपकी फर्टिसाइड, मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट है, जहाँ इंक्रीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम, तो इन सब चीज़ों के ज़रिए जो हैं, जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं और जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके इन सब के एक रिपोर्ट तैयार करके जो है गवर्नमेंट के पास करते हैं, कि जिसमें उन्हें एक गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको इन जगहों पे आपको नए कानून या नई पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता है इन डाटा और इन सर्वे के आधार पर। अब मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, ये एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये एक्टिविटी जो है, ये एग्जाम्पल आप इसको पढ़िए, तो आपको बहुत सारी, आपको यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अडॉप्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। नाउ आज मैं आपको जो है क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और 1 मार्क्स क्वेश्चंस है, ये तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपसे एक बार फिर से बात कर रहा हूँ, एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप अपना रूटीन हावर स्टडी का नहीं बनाएंगे और जब तक आप प्रॉपर रीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आवर कंप्लीट एफर्ट्स वुड गो ऑन इन वेन, ठीक है, ये सब कुछ व्यर्थ है फिर, ठीक है। इस वक्त हम, मेरे और आपके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, ठीक है, एक सिंसियरिटी बिल्ड होनी चाहिए और एक हॉनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हॉनेस्टी, सिंसियरिटी और वो जो ट्रस्ट है, ठीक है, वही ये डिटरमाइन करेगा कि मैं और आप मिलके कितने अच्छा बेहतर करते हैं, ठीक है, और वो बेहतर आपका अपने लिए है, ठीक है। आप अच्छा करो तो इस टाइम में तो वो हमारे लिए सबसे एक अचीवमेंट रहेगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपना काम जो है टाइम पे करिए, सही तरीके से करिए, और यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है वो आप जरूर मेरे से शेयर करें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, आपको थोड़ा सा हिंट पॉइंट देता हूँ। जैसे व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया इफ एनी। अब इसमें आपने क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका क्राइटेरिया क्या है डिफरेंट कंट्रीज को डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में कैटेगराइज करने के पीछे उनका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्राइटेरिया है। आपको इसमें बुक में दिया हुआ है कि कितनी पर कैपिटा इनकम जो है उसकी किसी भी कंट्री की कितनी US डॉलर के अकॉर्डिंग टू कितनी होनी चाहिए तो वो डेवलप्ड नेशन होगा, और कम है तो डेवलपिंग, और कितनी कम है तो वो अंडर डेवलपिंग के स्टेटस में आएगा। इसके अलावा व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें आ गई। इसी को आपने एक्सटेंड करना है। आप ये क्वेश्चन जो है यू हैव टू डू इट ऑफ 3 मार्क्स, प्लीज़ आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने 3 मार्क्स के हिसाब से करना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको पॉइंट वाइज में कर सकते हैं, वैसे पॉइंट्स में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप 3 पॉइंट्स बनाइए एंड दैट इज सफिशिएंट। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट रिस्पेक्ट्स इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब आपको पता है कि जो वर्ल्ड बैंक है बेसिकली वो कंपैरिजन जो करता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम,
ठीक है, वो सिर्फ इनकम के आधार पे कंपैरिजन करता है किसी के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस का। लेकिन यहाँ पे जो यूएनडीपी है, ठीक है, उनकी जो मापदंड है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को चेक करने का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पब्लिक फैसिलिटीज। जो वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज हैं उसके आधार पे, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, सेक्स रेशो पे कितना काम हो रहा है, उनका लिटरेसी लेवल कितना है, मेल लिटरेसी लेवल कितना है, फीमेल लिटरेसी लेवल कितना है, सेक्स रेशो कितनी है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड कितना है, इन सब चीज़ों के आधार पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन भी आप 3 मार्क्स के हिसाब से करेंगे और इस क्वेश्चन में आप 2 पैराग्राफ बनाएंगे। Got it? In the one paragraph, in the first paragraph, you have to explain about the criteria of World Bank, and in the second paragraph, you have to explain about the UNDP. Then question number 6. Why do we use averages? ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए ये। Are there any limitations to their use? उनकी क्या लिमिटेशन होनी चाहिए? एवरेजेस का जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए? इलुस्ट्रेट विद योर ओन एग्जांपल रिलेटेड टू डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट के आधार पे आप कोई भी एग्जांपल देखिए, इसको समझा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका 5 मार्क्स का बन सकता है, आप इसको 5 मार्क्स तक लिख सकते हैं। और देखिए इसमें व्हाई डू वी यूज एवरेजेस फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए आपकी ये एक्सप्लेनेशन। आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज, ये सेकंड पैराग्राफ में। और इलुस्ट्रेट विद योर ओन एग्जांपल रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ये थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। कोई ज़्यादा पूरा एक्सप्लेन नहीं, प्रॉपर एक शॉर्ट में अपने वर्ड्स में आपने इन चीज़ों को मेंशन करना है। देन इन क्वेश्चन नंबर 7, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन हरियाणा, हेंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर स्टेट्स। डू यू एग्री? डिस्कस। मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल आपको खुद पहले बुक में रीडिंग करना चाहिए, उसके बाद आप इसका खुद आप इसको क्या बोलते हैं उसको, पूरा इसका निष्कर्ष निकालें। तो आप अपने विचार जरूर प्रकट करिए कि आप सहमत हैं या नहीं हैं। आप इसको 3 मार्क्स में ही करिए, 2 पैराग्राफ सुनाइए। फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब आपने इसमें जो है आज जो एनर्जी के जो प्रेजेंट सोर्सेज हैं उनके बारे में लिखना है, और 50 साल पहले से अब ये किस तरह से डेवलप्ड हुई है, क्या सुधार देखने को मिला, 50 साल पहले क्या कंडीशंस थी और अब क्या आपको किस किस आधार पे आपको इनमें चेंज नज़र आती है, ठीक है। तो आप ये डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रोसेसेस वाला जो टॉपिक है उसको जब आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको उसमें आंसर्स मिल जाएंगे। ये भी आप 3 मार्क्स के हिसाब से करिए। वाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ये तो क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में बहुत डिटेल में, तो आई थिंक आई नीड नॉट टू रिपीट अबाउट इट, ठीक है। तो ये आप 3 मार्क्स के हिसाब से करिए। क्वेश्चन नंबर 10, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन, हाउ इज दिस स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट, डिस्कस। इसमें मैं बार बार आपको बहुत बार ये चीज़ क्लास 9th में भी हमने बहुत बार डिटेल में पढ़ी थी, बहुत से टॉपिक्स से, डिफॉरेस्टेशन जब हमने हिस्ट्री में कवर किया था, तो कि इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स जो है दैट वुड डेफिनेटली लीड्स द कंट्री टुवर्ड्स द डेप्लीशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो उसी को रोकने के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और इंडिस्क्रिमिनेट वे ऑफ यूजिंग रिसोर्स जो है दैट इज आल्सो बिकम द बेसिक कॉज ऑफ पॉल्यूशन और द पॉल्यूशन दैट इज हैम्परिंग आवर इकोसिस्टम, इजंट इट। सो आई थिंक आप इसमें बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो ये भी आप 3 मार्क्स के हिसाब से करिए। लिस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू, ठीक है, 3 मार्क्स। सिर्फ आपने वो एक्टिविटीज लिखनी है, यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन अबाउट देम, you simply have to mention the name of that activities. Then your for each of the items given in table 1.6, find out which country is the top and which is, ये आप रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक सिचुएशंस दी है, इसमें
ये सिचुएशन बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसे जरूर करिए आप, यू वुड गेट द न्यू, यू विल एक्सपीरियंस्ड अ न्यू थिंग स्पेशली वाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको नए सिरे से एक नया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और 1 मार्क्स क्वेश्चंस में मैं बता दूं आपको कि अब से बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अभी से आप एक्टिविटीज़ लेट्स वर्क दिस आउट जो है उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश मत करना। यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, यू आर नॉट हैविंग अ वार्डन, ठीक है। सो एट प्रेजेंट यू 13 जो है जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस लर्न करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, यू नीड नॉट टू बी गेटिंग कन्फ्यूजन, आप सिंपली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई एम हियर, आई एम देयर फॉर योर हेल्प, आई एम ऑलवेज एट देयर फॉर योर हेल्प, ठीक है। तो आप इसके अलावा एक मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। आपने सिर्फ एक मिनट का वीडियो बनाना है, चाहे थोड़ा कम ही बना लो बेशक जैसे भी, उसमें आपने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के बारे में अपने विचार रखने हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस, उसके बारे में आपने ये चीज़ बतानी है, ठीक है, कि हमें हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आप कोई भी समस्या ले सकते हैं, अपने सराउंडिंग की कोई समस्या को हाईलाइट करके अपने विचार रख सकते हैं। यू कैन मेक योर वीडियो आइदर इन इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और पंजाबी, इन वट एवर वे, ठीक है, इन वट एवर लैंग्वेज, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो आप करिए, एक नया एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा, इट्स नॉट सो बिग टास्क, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।